Assalamu alaikum. Okay, guys, this is the lecture which I have given last class, and I think that was 24th of October, but I couldn't upload it on the LMS. Uh, Here is the lecture. This is chapter 13 of Menke book, the textbook which I have referred to you. We will start with the isocons and isocost curve. Previously, we have completed how a consumer achieve its equilibrium, and now we will see how a producer attain or achieve its equilibrium point, where he produce maximum within a limited resources. Uh, so it is very much likely with the consumer behavior or the consumer equilibrium, where we have studied about uh, indifference curves and budget constraint. It is very much similar to that. Let's start with K. What are isocons? Isocons actually production function with two variable inputs or equal product curve, and this is very much equal to uh, the indifference curve which we have studied last in the last lecture. Second is the precise definition of isocont. An isocont is a curve showing all possible combination of inputs physically capable of producing a given level of output. Uh, in consumer behavior, we didn't take inputs, but we took uh, normal goods or just commodities, combination of different commodities capable of producing a given level of output. And what was the output for consumer? That was satisfaction or utility. So it is very much uh, equal to the indifference curve. And isocons represent all those combination of inputs which are capable of producing the same level of output. An isocount is also known as the production indifference curve. तो these are very much similar, जैसे हमने देख लिया उसके ऊपर. The last lecture has also confirmed this. Next, this is a hypothetical table, and this is actually the combination of x and y to produce a given level of output. And we have two different factor x and factor y, and this is the combination a, b, c, d, e. If we use factor x, just one factor of x, we will use 12 factor of y, and at point d, when we increase our x factor from 1 to 4, we have to drop the factor y from 12 to 3. And similarly at point b, this is 2 and 8, c 3 and 5, and at point e, 5 and 2. If we join all these points, we will get this kind of curve, which is called isocont curve. This is the isocont curve, and at this, along the isocont curve, the production level will remain same. For example, if just thinking hypothetically, this is the curve where the production uh, output is 100 of any product A. So at point this all have the same production level. कोई भी हम यूज कर लें इस पे, either this is point D, sorry, E, that was D, C, B, E, the level of production will remain same. This is called isocont curve. And there are some assumption of the isoconts, इसलिए कि जब भी हम कोई थ्योरी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो actually it is backed by some assumption. If these assumptions are valid, then the theory is valid. Otherwise, theory is invalid. Because for validity of a theory requires some uh, basic structure, and these basic structure are actually assumptions of the theory.
assumption of the isoquants क्या है, only two factors are of input products. This is only for analysis, कि जब हम ग्राफ के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो we can show only two factors, and those factors can be represented at x axis or y axis. Factors of production are divisible into small units and used in the various proportion. और जो भी आपका फैक्टर्स है, फैक्टर एक्स हो गया, फैक्टर वाई हो गया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जैसे हमने इसमें देखा कि अगर हम फैक्टर एक्स का जो है पहले पॉइंट के ऊपर 1 यूनिट ले रहे थे तो वहाँ पर 12 यूनिट ले रहे थे। तो देन द अदर एट अदर पॉइंट्स the numbers of factors are different. It means it is all the factors are divisible. Some of the factors are not divisible. We will see what are those factors, and we will read it later. Okay, technical condition of the production are not possible to change at any point of time. टेक्निकल मीन जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी एक सर्टेन जो है हर मशीनरी की, हर टेक्नोलॉजी की एक पोटेंशियल आउटपुट होता है, या इसको हम कहते हैं कैपेसिटी होती है। तो दैट कैपेसिटी और दैट मेथडोलॉजी और दैट टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट। इसलिए कि हो सकता है कि किसी मेथडोलॉजी के चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी नई आपको यूज़ करने की वजह से, तो आपका जो है प्रोडक्शन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो आइसोकॉन्ट्स के ऊपर जो है वो रहने के लिए और एक गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी है वो चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो है वो चेंज ना हो। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे। ये तो एक जर्नल सी है कि जो मोस्ट एफिशिएंट वे, मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन एक्स है और उसके हमारे पास जो है चार जो है हमने उसके फैक्टर लिए, फॉर एग्जांपल कि फैक्टर एक्स है, उसके ऊपर हमने उसके 4 यूनिट जो है वो लिए हुए हैं। तो हर यूनिट की जो काम करने की सलाहियत है, या जो उसकी कैपेसिटी है, या उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल सेम है। उसकी प्रोडक्टिविटी में दूसरी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जाहिर है कि फिर वो प्रोडक्शन के अंदर फ़र्क आ सकता है। टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट: linear isocont, right angle isocont, convex isocont, and the same kind of curves we have seen in difference curves. It can be linear interference curve, right angle interference curve, or convex interference curve. Similarly, isoconts have the same property or same structure. Linear isocont मैं पहले इसके दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये है, दिस इज लीनियर आइसोकॉन्ट। लीनियर आइसोकॉन्ट का मतलब ये है कि ये जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, नॉट गुड्स, बट द फैक्टर्स विच वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन कमोडिटी, दोज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और इसमें जो इन्होंने एग्जांपल जो दी हुई है वो ऑयल और गैस की दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि जनाब हमारे पास एक जैसा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर जो है बॉयल वाटर यूज़ हो रहा होता है, और उसके लिए बॉयलर चलाने के लिए हमें ज़ाहिर है कि एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी कैन बी और हम उसको जो गर्म करना चाहते हैं, इट कैन बी थ्रू ऑयल और पेट्रोल और गैसोलीन वॉट, और दूसरी तरफ जो है वो गैस भी जो है वो यूज़ की जा सकती है। तो अब उसके डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होंगे वो बिल्कुल एक सर्टेन प्रोपोर्शन में होंगे। अगर हम कार की मिसाल ले लेते हैं, तो जिस तरह से उसमें होता है कि जनाब के जो जो आपकी गाड़ी है जिसके अंदर सीएनजी भी लगी हुई है, मतलब वो गैस है, और दूसरी तरफ जो है पेट्रोल से भी चलती है, तो पेट्रोल का एक सर्टेन जो है एक माइलेज है कि वो पर लीटर जो है इतना माइलेज देती है, और जो गैस है वो पर जो है किलो इतना जो है वो एक सर्टेन जो है उसका कवरेज होता है डिस्टेंस का। तो वो आपस में जो है बिल्कुल एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही होते हैं, एक फिक्स्ड एक उनका जो है प्रोपोर्शन होता है कि अगर आप गैस यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर पेट्रोल यूज़ नहीं करेंगे, तो ये तो आपको इतना पेट्रोल जो है वो मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा, और अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इतना करना पड़ेगा। राइट एंगल आइसोकॉन, दिस इज अ कंप्लीट नॉन substitutability between the inputs.
ये हमने इससे पहले एक चीज़ और भी पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कम्प्लीमेंटैरिटी होती है। व्हाट इज़ कम्प्लीमेंटैरिटी? कि एक सर्टेन अमाउंट का जो है एक प्रोडक्ट वो जॉइंट कंज्यूम की जा रही होती है। इसी तरह से ये भी है इसके ऊपर कि जनाब ये जॉइंटली जो है वो कंज्यूम किए जा रहे होते हैं, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट लाजमी चाहिए होता है, वो भले ही से आप दूसरे इनपुट को जितना भी चाहे वो डिक्रीज़ करते रहें। एग्रीकल्चर के अंदर हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमने जो एग्जांपल दी हुई है वो चेसिस और व्हील्स के ऊपर दी है कि स्कूटर जो भी होगी, जाहिर है कि उसके दो व्हील्स ही चाहिए होंगे, चाहे चेसिस का डिज़ाइन जिस तरह से भी हो या चेसिस को आप छोटा बड़ा जैसे भी कर रहे हो, बट यू रिक्वायर्स अ प्लेस फॉर फिक्सिंग टू व्हील्स। सिमिलरली फॉर अदर कि वो डिफरेंट है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आपके व्हील्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर प्लस एक चीज़ और भी है कि जैसे हम एग्रीकल्चर में कहते हैं कि एक सर्टेन पीस ऑफ लैंड तो चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी एक है फॉर एग्जांपल वीट ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो वी लैंड चाहिए ही चाहिए किसी प्रोडक्शन लेवल के ऊपर। अब उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन को चेंज करेंगे किस तरह से कि आप कितना जो है फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, कितना जो है वो बाकी इनपुट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कॉन्वेक्स आइसोकॉन, दिस इज़ जनरली ऐसा ही होता है जो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है इसके ऊपर कि जैसे फॉर एग्जांपल एक गारमेंट फैक्ट्री है, हमारे पास दो इनपुट हैं, एक क्लॉथ है और दूसरा जो है वो लेबर है, क्लॉथ कह दें या फैब्रिक कह लें। तो इस तरह से जो है वो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से चेंज करते रहेंगे और हमारा जो होगा ये बिल्कुल सेम रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो लेबर और क्लॉथ गलत है, लेकिन बहरहाल ये समझने के लिए इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको, वो जो हमने सबसे पहले एग्जांपल दी थी एक हाइपोथेटिकल कि किस तरह से आइसोकॉन्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। Properties of the isocon, this is very much similar to the properties of the interference curve. Isocons are negatively slope, ज़ाहिर है negatively slope होगा इसलिए कि अगर हम एक इनपुट बढ़ाते हैं तो दूसरे इनपुट को कम करना पड़ेगा, मतलब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है नेगेटिव है। इफ़ वी इंक्रीज वन इनपुट वी हैव टू ड्रॉप डाउन सेकंड इनपुट, तो इस वजह से इसका जो स्लोप आएगा वो लाजमी तौर पर नेगेटिव आएगा। ओके, हायर आइसोकाउंट रिप्रेजेंट द लार्जर आउटपुट, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि ये जिस तरह से इंडिफरेंस करता है, ये जो Q1 है जो आइसोकाउंट है इसके ऊपर प्रोडक्शन लेवल कम होगा, लेकिन जो हायर होगा वो प्रोडक्शन लेवल उस पर ज़्यादा होगा, और जो लोअर है उसका प्रोडक्शन लेवल कम है। तो इसमें यही बताने, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी यही होती है कि वो जितना हायर होगा उसके ऊपर प्रोडक्शन लेवल भी हायर होगा। अच्छा, टू नो टू आइसोकॉन्स इंटरसेक्ट्स और टच ईच अदर, ये इससे पहले ही बताया जा चुका था जो हमने इंटरफेस कर्व में किया था, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से है कि अगर वो एक दूसरे को कट करते हैं तो एट द सेम टाइम जो है वो एक पॉइंट के ऊपर जो है जो नीचे वाला इंटरफेस कर्व वो दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से जो है ये हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जो कि उसके हर पॉइंट के ऊपर बरकरार रहती है। आइसोकॉन्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन की वजह यही है कि इसका जो स्लोप है वो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा प्रीवियस उसके ऊपर ले जाता हूँ, ये देख लें आप इसके ऊपर, ये ज़्यादा मैं इस वजह से लाया हूँ कि इसके ऊपर ये है, इस पॉइंट के ऊपर देखें ये चेंज ज़्यादा है, ये चेंज थोड़ा कम है, फिर ये चेंज है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा चेंज है, फिर उसके बाद ये छोटा सा चेंज है, और फिर इसके बाद और छोटा सा चेंज है, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा चेंज है। तो ये जो है इस वजह से जो है ये इसके इसका जो है जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यही होता है कि हम जिस जिस तरह से कम करते जा रहे हैं सेम अमाउंट से, 12 से 8, 8 से 6 पे आया, 6 से 4 पर आया, 4 से 2 पर आया, 3 पर आया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इसका रेशो बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गैप थोड़ा ज़्यादा है, 12 तक का है तो आपने ये 4 का गैप है, एक तरह से 4 पर 1 का गैप आ रहा है ये। तो ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, इसका स्लोप जो है ओवर द टाइम वो चेंज होता जा रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो इसका स्लोप है ये एक्चुअली मार्जिनल रेट ऑफ सब टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि चेंज इन फैक्टर वाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर एक्स। कि अगर हम ये कह लें कि जनाब कि ये कैपिटल है और ये लेबर है, तो उसका मतलब ये है कि चेंज इन लेबर ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, ये इस तरह से होगा। और इसी को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है
कि व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज एक्चुअली चेंज ऑफ लेबर ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, क्योंकि एक एक्सिस के ऊपर हमने लेबर लिया हुआ है और एक एक्सिस के ऊपर कैपिटल लिया हुआ है। तो ये जो चेंज ऑफ लेबर है एक्चुअली ये, और जाहिर है कि उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल फिक्स है, या हम उसको कह सकते हैं कि जनाब जो चेंज ऑफ लेबर है उसकी वजह से प्रोडक्ट भी चेंज होती है और कैपिटल की वजह से ये भी चेंज होती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जनाब की ये चेंज ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, और चेंज ऑफ कैपिटल जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। इसको इस वजह से थोड़ा सा मैंने यहीं पर ही, आप मतलब ये कि बस ये इसी पे ही रहे, इसकी एक थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि हाउ इट इज़ क्या कहते हैं ड्राइव्ड, एंड हाउ वी गेट दिस this estimation और this estimated क्या कहते हैं वेरिएबल। तो ये एक्चुअली एक इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन डेरिवेशन है, और ये प्योर एक मैथमेटिक्स है जिसके अंदर कैलकुलस इन्वॉल्व है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप ये याद रखिए कि जो उसका जो स्लोप होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विच इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोकॉन कर्व्स एंड आइसोकॉस्ट एनालिसिस, एक्चुअली इसी के ज़रिए से जो है आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि जनाब के आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसको आप किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कि आपके जो गिवन रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल करें, या फिर ये है कि आपके पास एक आपने सेट किया हुआ कि जनाब कि मुझे ये सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट अटेन करना है, मुझे जो है क्या कहते हैं इतनी प्रोडक्शन रोज़ लेनी है किसी भी एक फैक्ट्री के अंदर, या कितनी सेल जो है करनी है, उसके लिए मिनिमम कॉस्ट जो है वो क्या होगी, और मिनिमम कॉस्ट पर रहते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो ये है सारा, और उसको डिफरेंट इसमें किया हुआ है। मेरा ख्याल आप लोग उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आई थिंक इट वुड बी इनफ। ये इसके 4 पॉइंट्स देख लीजिएगा। आफ्टर आइसो कॉन्ट हम अब आएंगे कि आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है। आइसो कॉस्ट लाइन बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से हमने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, कंज्यूमर चॉइस के अंदर बजट कंस्ट्रेंट पढ़ा था। तो इसमें बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक तरह का बजट कंस्ट्रेंट ही होता है कि आपके पास इतना जो है ये एक जो कैपिटल है वो अवेलेबल है, सरमाया अवेलेबल है, या आप उसके ज़रिए से इतना इनपुट जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी ख़ास प्रोडक्शन के लिए। अब उसमें एग्जांपल दी हुई कि सपोज अ फर्म हैज़ 1000 रुपीज़ 1000 टू स्पेंड ऑन द टू फैक्टर्स एक्स एंड वाई विद द प्राइस ऑफ फैक्टर इज रुपीज़ 10। अगर वो 10 रुपीज़ का सिर्फ एक फैक्टर है, हम कहते हैं कि नहीं अब सारा का सारा यही फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, और दूसरा वाई जो है वो 20 का है, तो अगर हम जो है सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ वाई के ऊपर यूज़ स्पेंड कर रहे हैं और एक्स हमने ज़ीरो रखा हुआ है, तो ये 20 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 50। और सिमिलरली अगर हमने ये कहा है कि नहीं जनाब के सिर्फ और सिर्फ जो है हमें एक्स जो है वो यूज़ करना है, वाई यूज़ नहीं करना है, और उसकी एक्स की प्राइस जो है वो कितनी है 10 है, तो फिर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 यूनिट आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि एट मैक्सिमम हम जो है वो 100 यूनिट ऑफ एक्स और एट मैक्सिमम 50 यूनिट्स ऑफ वाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आपस में जब मिला देंगे इस तरह से, तो ये जो लाइन कहलाएगी ये आइसो कॉस्ट लाइन कहलाएगी, कि ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई, ये वाई एक्स, ये इसको हमने जो इसको सबको आपस में मिला दिया, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये फैक्टर एक्स कहलाएगी। आइसो कॉस्ट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने इससे पहले कंज्यूमर में पढ़ा था कि टोटल इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाई। यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ वाई जो गुड है दिस इज नॉट वाई, एक्चुअली दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज कैपिटल। तो दिस इज कैपिटल, वी हैव डिनोटेड कैपिटल for K and L actually representing लेबर। तो प्राइस ऑफ द लेबर क्या होगी, जाहिर है कि वेज होगी जो कि प्राइस ऑफ लेबर होगी। इसी तरह से प्राइस ऑफ कैपिटल सर्विस जो है उसको हमने आर कहा हुआ है, और ये रेंट भी कहा जा सकता है और उसको इंटरेस्ट भी कहा जा सकता है कि जनाब की जो कैपिटल की प्राइस है दिस इज इधर रेंट और इंटरेस्ट रेट। तो ये उसकी प्राइस है, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये नंबर्स ऑफ लेबर है, ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल। तो ये टोटल कॉस्ट जो है आ जाएगी, इसको जिसको हम क्या कहेंगे, इस लाइन को जब ड्रॉ किया जाएगा तो ये आइसो कॉस्ट लाइन
कहला रही होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये है, इसके ऊपर देखें डिफरेंट आइसो कॉस्ट हैं, और हमने ये फॉर एग्जांपल कहा हुआ है कि जनाब हमें प्रोडक्शन यही रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स, ये फिक्स है, एक्स इज एनी मे बी एनी प्रोडक्ट, एंड के इज द कैपिटल इनपुट, एंड एल इज द लेबर इनपुट। ओके, और इस लेवल के ऊपर जो है हम मतलब देखिए, ये जो कैपिटल ये जो आपका जो बजट सॉरी जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, आपके जो आइसो कॉस्ट लाइन है, ये जो यहाँ पर एक दूसरे को जो कट करेंगे आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। हमें दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट जो है वो ये वाला है जो एक दूसरे को कट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर आइसो कॉस्ट और आइसो काउंट जो है वो बराबर है। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट भी है, ये पॉइंट ई है, यहाँ पर भी जो है प्रोडक्शन लेवल वही है जो यहाँ पर है, लेकिन आप देख लें कि ये इस पॉइंट के ऊपर क्या है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, जो कॉस्ट लाइन जो है वो बता रही है कि इस ज़्यादा कॉस्ट है, तो ये एफिशिएंट पॉइंट नहीं होगा, बल्कि एफिशिएंट पॉइंट क्या होगा कि जो आप मिनिमम कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जो सिर्फ एक ही पॉइंट, एक टेंजेंट हो रहा है यहाँ पर आइसो काउंट, और इससे ऊपर वाले आइसो काउंट पे ना हम जा सकते हैं ना हम जाना चाहते हैं। तो इट वाज, तो दैट्स वाई वी, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जनाब के एक सर्टेन लेवल के ऊपर मिनिमम आप जो है कॉस्ट के ऊपर जो है ये प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर देख लें कि ये जो इसका जो स्लोप है वो प्राइस रेशो होता है, जो कि डब्ल्यू ओवर आर, जिस तरह से हमने पहले देखा था, प्राइस ऑफ आई डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स। और यहाँ पर क्या है इसके ऊपर कि ये है कि डब्ल्यू ओवर आर, और ये आइसो कॉस्ट का स्लोप है और ये आइसो काउंट का स्लोप है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम जो है क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो W विल कम हेयर इन द डिनोमिनेटर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल गो अप एज न्यूमरेटर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन आर ये हो जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ये W नीचे आ गया इसके। अच्छा, अब ये डिफरेंट होते, इसका थोड़ा सा एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता दूं कि जनाब आप जो है लेबर को इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है प्रोडक्शन मज़ीद लेबर जो है एम्प्लॉय करना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? इसलिए कि जिस जिस तरह से हम क्या लेबर का इजाफा करते जाते हैं, तो प्रोडक्शन में तो इजाफा हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ जो वो जो इंक्रीज़ है वो विद द डिक्रीजिंग रेट होता है। ये हम नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे किस तरह से होता है ये, कि अच्छा, तो फिर हम कब तक इजाफा करेंगे? उस वक्त तक इजाफा करते रहेंगे जब हम समझें कि नहीं जनाब ये, कि एक फॉर एग्जांपल कि जनाब कि इसने प्रोडक्शन में जो इजाफा किया एक लेबर ने, उसकी वैल्यू है 1000 रुपीज़, राइट? लेकिन जो लेबर को हम जो पैसे दे रहे हैं, जो वेज उसकी दे रहे हैं, वो भी 1000 रुपये है। तो उस पर क्या मतलब ये होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, और अगर इससे हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और मज़ीद कोई लेबर हमने जो एम्प्लॉय किया, उस लेबर को जब हमने एम्प्लॉय किया उसको भी हमने 1000 रुपये दिए, लेकिन पता लगा कि जनाब की जो उसकी जो प्रोडक्शन जो उसने मज़ीद जो इंक्रीज़ करके दी वो 900 थी। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन तो ये 900 करके दे रहा है, लेकिन इसको हमें पैसे जो है वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, जिसका कम हो रहा है, जब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर जो प्रोडक्शन रोक दी जाएगी। तो एफिशिएंट पॉइंट ये है कि आप उस वक्त तक लगाएंगे जब तक कि वो आपका मतलब नुकसान ना कर रहा हो। तो इस वजह से हम यही कहते हैं कि जनाब कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और यही चीज़ कैपिटल के लिए भी है। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जैसे मैंने 1000 और ये भी 1000 बताया था वेज रेट, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रेशो है जो कि हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि देखिए इनपुट जो यूज़ होता है वो सिर्फ 2 इनपुट यूज़ नहीं हो रहे होते। देयर आर नंबर ऑफ इनपुट्स विच अ कंपनी यूज़ फॉर प्रोडक्शन, और उसके अंदर जो है जो चीज़ें शामिल होती हैं उसकी प्रोडक्ट, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हो सकती है, उसको भी हम कितना जो है वो, फॉर एग्जांपल के नंबर ऑफ व्हीकल्स की जो है वो प्रोडक्शन लेवल कितना है, और फिर प्लस यूटिलिटी भी उसके अंदर मौजूद होती है। फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे इनपुट हैं, एक इनपुट नहीं होता है, देयर आर नंबर ऑफ यूनिट डोमेस्टिक इनपुट्स, और प्लस जो है वो आपका एक इम्पोर्टेड इनपुट होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो कि साथ साथ घर में काम करवा रही होती है, कुछ के वेंडर्स जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे इनपुट
होते हैं उस पर। अब ये है कि सबका रेशो जो है वो सेम होना चाहिए। तो हमारे पास जो रेशो होगा वो जाहिर बात है कि हमारे पास 1 ही होना चाहिए। अब ये 1 कब होगा कि जब उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट और उसकी गिवन प्राइस जो है वो आपस में इक्वल हो। तो वो किसी भी जो है कंपनी के लिए या किसी भी फैक्ट्री के लिए या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए, अगर जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट इनपुट, तो वो जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ओके जी, ये तो हो गया, हमने जो आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट पढ़ा था। और इसके लिए एक अलग से जो है हमने आपको दिया हुआ भी था जो है इसके रीडिंग मटेरियल एक अलग से दिया हुआ था। तो वो इंशाल्लाह हम जो है वो रीडिंग मटेरियल उसको देख लेंगे। एक मिनट, सॉरी। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये जो चैप्टर मैंने आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट कहलाया था, ये एक्चुअली इसका जो पूरा जो राइटअप दिया हुआ है 3 या 4 पेज का है, वो शॉम सीरीज़ है, शॉम सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें वो मैंने LMS पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी। दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स है कि हम जो है इसके के what we will learn in this subject: what is production function, what is marginal product, how they are related, what are the various costs and how they are related to each other and to the output, and how are costs different in the short run versus the long run, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ये हम भी इसको देखेंगे। अच्छा जी, जब किसी की बात होती है जनाब टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, इसमें वी अज्यूम दैट द फर्म्स गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अब ये देखने की बात है इसके ऊपर कि जनाब कि ये क्या वाकई ऐसा होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ज़ाहिर है कि अगर हम जर्नली इस तरह से देखेंगे तो लोग यही कहेंगे नहीं जनाब कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में यही होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल होती है, कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, आप अपनी सेल को बढ़ाएं। और सेल इसी तरह से बढ़ेगी आपकी कि आपकी जब वो लो प्राइस होगी। लो प्राइस किस तरह से होगी कि आपकी प्रोडक्शन पे कॉस्ट कम आ रही हो। तो होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, जितनी ज़्यादा मैसिव प्रोडक्शन आप कर रहे होते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती रहती है। तो इस वजह से ये अमूमन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, बल्कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल भी हो सकता है। बट वी अज्यूम हेयर दैट द फर्म्स गोल इज टू maximize profit. This is the word assume is, this is very important. That's why we are saying the firm goal is to maximize profit. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? ज़ाहिर है कि बड़ी सिंपल, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो भी आप उससे अर्न कर रहे हैं, जो भी आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें। और दिस टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व एवरी कॉस्ट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंट ऑफ द शॉप। इफ़ यू आर आई मीन इफ गिव द एग्जांपल ऑफ द शॉप, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि यूटिलिटी चार्जेस होंगे, दुकान का किराया होगा, और जो सेल्समैन होंगे उनके जो है जो रेमुनरेशन वगैरह जो है, और टैक्सेस वगैरह हैं, और भी इस तरह से जितने भी छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, सारे के सारे चार्जेस ये निकाल दिए जाएंगे। तो फिर उसमें से ये टोटल रेवेन्यू, तो वो प्रॉफिट कहला रहा होगा। द अमाउंट, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, दिस इज द definition, and what is the total cost, this is what I have already explained. There are two kind of cost in economics: explicit cost and implicit cost. Explicit cost is simply a monetary cost. आप ये समझ लें कि जिसके पैसे आप देने पड़ रहे हैं और जो कि बड़े आराम से कैलकुलेट हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है, ये इसका थोड़ा, इसको हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एक हिडन कॉस्ट सब होती है, उसको जो है हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में सिर्फ इसमें थोड़ा सा आगे जो है वो दिया हुआ है। रिमेंबर ऑफ द जो आपके जो हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसमें जो है यही एक दिया हुआ था। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट।
तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉस्ट होती है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जाहिर है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट ही एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। For a firm decision, what is important for a firm, explicit or implicit? uh, and of course both are important for a factory or for a business. Implicit cost, अब मैं आपको बताता हूँ कि implicit cost ने एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल कि you need a capital of $100,000 to start a business, and the interest, and you decided to borrow it. The interest rate is 5%. What does it mean? You have to pay back uh, $5,000 as interest payment. This is explicit cost, and it's very simple क्योंकि ज़ाहिर है ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, मॉनेटरी कॉस्ट है इसके ऊपर। केस टू क्या, अदर केस ये है कि यू नीड $1,000 and positive point is that you have 40,000 as saving and you don't need to borrow 40,000. That's why you decided to borrow only 60,000 instead of 100,000. अब उसमें ये देख लीजिए आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि आप 60,000 जो है वो बोरो कर रहे हैं, तो 60,000 का 5% क्या होगा, 5 6 30, तो दिस इज ओनली 3,000 जो है अब आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये पे करना पड़ेगा। एंड वर अबाउट 40,000, क्योंकि 40,000 जो है आप यूज़ कर रहे हैं अपनी सेविंग को, अगर आप उस सेविंग को बजाय बिजनेस में लगाने के, अगर आप उसको वहाँ पर इसी तरह से बैंक पर रख देते और अज्यूम करते हैं कि वहाँ से भी आपको 5% जो है वो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो वो कितना था, तो 40,000 का जो इंटरेस्ट जो आपको मिलना था 5% के लिहाज से 2,000 मिलना था। तो ये जो है क्या कहते हैं आप फॉरगोन कर रहे हैं और उसको जो है क्या कहते हैं वहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फॉर अ बिजनेस बोथ केसेस टोटल जो कॉस्ट है वो 5,000 ही है। जैसे अगर वो सिर्फ इधर से लेता 100% बोरो करता तो 5,000 है। अब इसमें क्या है, एक्सप्लेन, अगर वो 60,000 ले रहा है, 40,000 अपनी सेविंग यूज़ कर रहा है, तो 60,000 की जो है वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, सिंपली जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और प्लस जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो 2,000 है। तो जाहिर बात है क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों यूज़ की जाती है, तो टोटल कॉस्ट उसकी 5,000 है, लेकिन उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट 3,000 है और 2,000 जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट वो जो सिंपल जो आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट ही जो है वो उसको हम कहते हैं कि जनाब ये आपका प्रॉफिट है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का। इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर दोनों तरह की कॉस्ट इसमें शामिल होती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंड द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं इनका, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इसको छोड़ देने, फिर आ जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। एक एग्जांपल दी हुई है, एंड व्हाट इज़ दैट एग्जांपल, कि एक एग्जांपल उन्हें एग्रीकल्चर की दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसका नाम जैक है, और वो जो है ग्रो करना चाह रहा है वीट को। उसके पास जो लैंड है वो 5 एकड़ ऑफ लैंड है, और ही कैन हायर एज मैनी वर्कर्स एज ही वांट्स। तो वर्कर्स जो भी होंगे उसके लिए हायर करने के लिए, तो एक 5 एकड़ के लैंड के ऊपर जो है वो वीट ग्रो करना चाह रहा है। तो अब इसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा। अच्छा, अब इस तरह से ये कि जितने नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाएगा वो, तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक टेबल भी बनाएंगे, और साथ साथ इसका एक ग्राफ भी साथ साथ बनता जाएगा कि नंबर ऑफ वर्कर जब जीरो थे तो जाहिर बात है जब कोई वर्कर नहीं था तो उसमें से कोई भी जो है वीट नहीं हो सकती थी। फिर एक उसने जब वर्कर लगाया तो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो 1,000 जो है आपकी, इसमें इन्होंने इसको बुशल्स ऑफ वीट है जो कि 1,000 हुई। फिर जब हमने सेकंड वर्कर लगाया तो फिर ये प्रोडक्शन बढ़ के 1,800 हो गई,
थर्ड के ऊपर 2400 हो गई, फोर्थ के ऊपर 2800 हो गई, और 5 के ऊपर 300 है। जब इन सारे पॉइंट्स को हमने मिलाया तो ये हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बना। और आप देख सकते हैं ग्राफ जो है पहले तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर उसके बाद बढ़ तो रहा है, लेकिन वो जो है थोड़ा वो फ्लैटर जो है वो होना शुरू हो गया। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? इफ जैक हायर्स वन मोर वर्कर, हिज आउटपुट राइज बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अगर वो एक प्रोडक्ट को बढ़ाता है तो उसको बढ़ाने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दैट input which is worker, what amount of production increase, this is called marginal product। और नोटेशन हम क्या करेंगे, डेल्टा, जिसको हम चेंज इन, फॉर एग्जांपल डेल्टा क्यू, दिस इज चेंज इन आउटपुट, एंड इन आवर एग्जांपल दिस इज द बुशल्स ऑफ वीट्स, कि जनाब उसने टोटल कितने बुशल्स ऑफ वीट जो है क्या कहते हैं चेंज हुई, और चेंज ऑफ लेबर की वजह से। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के ऊपर। जनाब जी क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। 0 से 1, जब 1 को हमने चेंज किया, चेंज ऑफ लेबर 1 किया, तो चेंज ऑफ क्यू कितना हुआ, 1000। सेकंड पे चेंज ऑफ लेबर 1, तो चेंज ऑफ क्यू कितना हुआ, 800। फिर इसी तरह से चेंज ऑफ क्यू जो है जब हमने एक और किया तो चेंज ऑफ क्यू 600 हुआ। फिर उसके बाद जो है 400, फिर उसके बाद 200। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जा रही है। टोटल जो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन लेबर जो है वो कम होती चली जा रही है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। हम इसी तरह से एक एक करके जो है ये इसमें, पहले हमने सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स और क्वांटिटी देखी थी, एक पैक ग्राफ देखा था, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देखा हमने। अच्छा जी, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। ये हम पहले बता चुके हैं, इससे पहले भी हमने देखा था जब हम आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट पढ़ रहे थे। तो वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है एक्चुअली वो उसका प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप है। ये जो हमने कहा था, ये जो देख रहे हैं ये डिवाइड बाय, ये देख रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ वर्कर्स एक बढ़ाया तो फिर कितना हुआ, फिर थर्ड के ऊपर हमने क्या किया, ये फिर हमने थर्ड वर्कर बढ़ाया तो फिर प्रोडक्शन कितनी बढ़ी। फिर उसके बाद देखें आप कि हमने ये एक और बढ़ाया तो फिर थोड़ा सा उससे कम हुआ, फिर उसके बाद 200 आ गया, इस तरह से। तो ये जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये स्लोप है, और ये स्लोप इसी तरह से चलता चला जा रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद सबसे पहले तो एक तो ये थी जनाब कि जो प्रोडक्ट जो हमने जो लेबर लगाई थी, सही है। लेबर के अलावा एक और उसकी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है कि जनाब उसको ज़मीन का रेंट देना है पर मंथ। अब उसकी प्रोडक्शन कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रेंट तो उसको देना ही देना है, चाहे प्रोडक्शन कम हो रही हो, चाहे प्रोडक्शन बढ़ रही हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हाई हो या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, दिस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। और ये हमारे पास जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो आ गई। मार्केट वेज फॉर अ फार्मर वर्कर इज 2000 पर मंथ। जिस जिस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे, जाहिर है कि उसकी वो ये बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसके पास कितने हो गए, दो तरह की कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। जिस जिस तरह से ये जो है वो वर्कर्स को चेंज कर रहा है, तो जाहिर है कि उनकी भी जो है वो प्राइस चेंज होती चली जाएगी। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये तो देनी ही देनी, चाहे जितने भी लेबर एम्प्लॉय कर लें आप। फिर ये कॉस्ट ऑफ लेबर है, पहली लेबर है तो उसके ऊपर आपको $2000 देने पड़े फॉर एग्जाम्पल, सेकंड लेबर लगाई तो 4000, इसको हर किसी को 2000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो 5 के ऊपर 10,000 आ गई। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट यही होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। इन सब को अगर हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। 1000 प्लस 0 दिस इज 1000, 1000 प्लस 4000 दिस 5000, 1000 प्लस 8000 दिस इज 9000 एंड सो ऑन। जो आपके फिफ्थ आपने जो वर्कर लगाया उसको जो हम दे रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट 11,000 आ गई।
ओके जी, टोटल कॉस्ट कर्व। अब टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा? हमने इससे पहले क्या देखा था? टोटल प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व देखा था, और उसके अलावा जो टोटल जो है आपका मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है उसको हमने देखा था कि किस तरह से इसमें, दिस इज टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट आ रही है। अगर हम इसका जो है टोटल, इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रोडक्शन, हमने इससे पहले जो किया था वहां पर लेबर था, नंबर ऑफ, नो नो, दिस टाइम वी आर नॉट टेकिंग नंबर ऑफ लेबर्स, वी आर टेकिंग टोटल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल प्रोडक्शन। तो हमारा जो कॉस्ट कर्व जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्वांटिटी ऑफ वीट बढ़ती चली जा रही है और टोटल कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। शुरू में जो है ज़रा जो इसका जो पेस था वो कुछ कम था, कि कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रही थी, कॉस्ट भी उस लिहाज से बढ़ी। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। जिस तरह से पहले हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर देखा था, मार्जिनल प्रोडक्शन देखा था, तो इसी तरह से जाहिर बात है कि मार्जिनल कॉस्ट भी होगी। मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से होगी? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। इससे पहले जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर था। हम यहाँ कह रहे हैं कि नहीं जनाब, एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, ये किस तरह से होगी? फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यहाँ पे तो खैर आ गई है, 1000 चेंज हुआ है क्वांटिटी, इसको हमने डिवाइड किया 2000 से, तो हमारे पास कितना आया मार्जिनल कॉस्ट? $2। सेकंड में फिर हमने क्या किया कि ये डिफरेंस कितना है, 3 से 5 हुआ है ये, दिस इज $2000। और लेकिन इस दफ़ा जो चेंज इन क्वांटिटी है वो कितनी हुई? 800 हुई। इसको इससे डिवाइड किया तो ये बढ़ गया मार्जिनल कॉस्ट, 2.5 हो गया। फिर इसी तरह से इसमें भी है कि 2000 को हमने 600 से मल्टीप्लाई किया तो मार्जिनल कॉस्ट और बढ़ गई। फिर उसके बाद हमने सेकंड पे किया तो मार्जिनल कॉस्ट 3.3 से 5 हो गई। इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो 10 हो गई। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मुस्तकिल बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होता चला जाता है इस पॉइंट से, राइट। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा। अब आ जाते हैं दूसरे कॉस्ट का, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमने ये देखा था ना कि ज़मीन का किराया उसको देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, और उसके अलावा वो जो फिक्स कॉस्ट है, और फिर बाकी दूसरा जो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स डू नॉट वेरी, आप उसका जो भी होगा वो जाहिर है कि उसको 1000, जैसे मैंने बताया कि वो अच्छा, अगर किसी कंपनी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, लोन पेमेंट्स है, रेंट है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अब इसमें जो फार्मर जैक जो है वो क्या है, उसके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्चुअली वर्कर है, तो हमने कह दिया कि नहीं जनाब। और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो सकती है? अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है तो भी जाहिर बात है इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो फर्टिलाइज़र और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से जो है वो सीड है, वो भी दूसरी एक इनपुट मटेरियल हो सकते हैं। तो वो जो है सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो अब ये कि लेकिन जो ज़मीन का किराया है वो फिक्स्ड वेरिएबल है, और जो वर्कर है हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि ये वाहिद वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर। अच्छा जी, टोटल फिक्स, मैंने लास्ट क्लास में क्योंकि यहीं पर ही रोक दिया था इसको, तो मेरा ख्याल है कि हम भी इसको यहीं पर ही अभी रोक देते हैं। और ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके इंफॉर्मेशन के लिए जैसे बता दूं कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है वो किस तरह से होगी। हमने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जांपल हम कुछ और देखने बजाय उसके कि $100 जो है फिक्स कॉस्ट है, ये आ गई फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जिस तरह से बढ़ा रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, तो ये बन गया। अब जब हमने इसको टोटल किया तो ये जो टोटल कॉस्ट किस तरह से हो गई, ये हो गई। अब ये जो इसके अंदर देख लें कि ये जो डिफरेंस है, ये जो दिस प्लस दिस, तो आप इसका वर्टिकल डिफरेंस देंगे, ये वर्टिकल वर्टिकल डिफरेंस जितना भी है वो सब हर जगह बिल्कुल ये बराबर है। तो क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट के साथ ये ऐड होता चला जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट फिर वही देख लिया, इसके अंदर 100 से 170 के दरमियान 70, 17 से 250 के दरमियान 50। इस तरह से ये आपका मार्जिनल कॉस्ट जो इससे पहले भी हम कर चुके हैं, और ये मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ये
एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट थी। एवरेज कॉस्ट किस तरह होगी, क्वांटिटी से आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दें तो फिर ये आपके पास देखिए ये कम होता जाएगा, ये सिर्फ कम होता रहेगा मुस्तकिल, और उसका जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह से बनेगा फिक्स कॉस्ट के लिए। इसी तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है आपका, और अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 70 से 60, 60 से फिर कम हुआ 53, 53 से 52 हुआ, फिर बढ़ना शुरू हो गया 56 हो गया, फिर 63 हो गया, फिर 74 हो गया। मतलब ये है कि ये जो इसका कर्व बनेगा वो थोड़ा सा यू शेप बनेगा इस तरह से, और इसी तरह से ये फिर ये एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाएगा कि जितना आपका टोटल आ रहा था उस टोटल को जो है वो क्वांटिटी से डिवाइड करते रहें। इसका भी जो कर्व बनेगा वो एक यू शेप जो है वो कर्व बनेगा। ये है आपका, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको यहीं पर ही जो है अभी स्टॉप कर देते हैं, और जब वो नेक्स्ट जो होगा ताकि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो, और वो लोग जो क्लासरूम्स के अंदर बैठे हुए हैं उनका जो है वो साथ साथ चलता रहे। ओके जी, नाउ वी स्टॉप our